Hello, students. Today we are going to discuss an important topic of your syllabus. It's a research article that is written by Vinay Dharwadkar. It is included in the section of Voices of India of your syllabus. The title of his work is English in India and Indian Literature in English, the Early History from 1579 to 1834. First of all, there is an introduction of the writer. Vinay Dharwadkar, an eminent scholar and critic, was born in Pune in 1954 and he was educated at St. Stephen College, Delhi University, and the University of Chicago. He is the author of many books and he also edited many books. The name of these books are given here. His work, English in India and Indian Literature in English, the Early History, is a significant contribution to the study of Indian literature and the influence of English language and literature in India during the early colonial period. तो इनका ये जो वर्क है इंग्लिश इन इंडिया और इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश, इस वर्क में इन्होंने अर्ली हिस्ट्री बताई है कि कैसे इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज आई और कैसे इंग्लिश लैंग्वेज में इंडियन लिटरेचर को लिखा गया और ये इसे हम एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन मानते हैं विनय धारवाड़ का इंडियन लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में बिकॉज इन्होंने इस रिसर्च के माध्यम से ये बताया है कि इंग्लिश लैंग्वेज और जो इंग्लिश लिटरेचर है इंडिया का उसकी क्या हिस्ट्री रही है कॉलोनियल पीरियड के दौरान the first section there are four section in the work but only three sections of this work are included in your syllabus the first section second section and the fourth section these three section are included in your syllabus so the title of the first section is locating Indian English literature in हिस्ट्री तो इस सेक्शन का जैसे कि टाइटल बता रहा है इस सेक्शन में इन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर जो है इतिहास में कब आया यानी कब उसकी शुरुआत हुई सबसे पहले किस इंडियन राइटर ने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा so this section focuses on the historical context of English language and literature in India during the specific time period, that is 1579 to 1834. This section may explore the arrival of English in India through colonial encounters, the establishment of British East India Company rule, and the early stages of English language instruction and literary production in the region. तो जैसे कि यहाँ बताया गया है इस सेक्शन में इन्होंने ये एक्सप्लोर करने की कोशिश की है कि कैसे कॉलोनियल एनकाउंटर से इंग्लिश भाषा जो है वो इंडिया में आई कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका रूल यहाँ स्थापित हुआ और क्या अर्ली स्टेजेस थी इंग्लिश लैंग्वेज की और यहाँ के लिटरेरी प्रोडक्शन की इस रीजन में यानी इंडिया में द सेक्शन ऑल्सो डील्स विद द लाइफ ऑफ डीन मोहम्मद हिज बुक लिटरेरी कल्चर history and complexities of Indian writing in English during that time. So this is about the first section of the essay. The second section that is titled The Arrival of English in India. So as the title indicates, it tells about the arrival of English language in India. It may delve into the emergence and development of Indian literature in English during the colonial period. This section begins by stating that English language arrived in India 2 decades before the birth of East India Company. तो इस सेक्शन के शुरू में ही इस बात को स्टेट किया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआत से 2 दशक पहले जो है इंग्लिश भाषा यहाँ आ गई थी भारत में द फर्स्ट पर्सन हु रॉट इन दिस लैंग्वेज ऑन इंडियन सॉइल वाज फादर थॉमस स्टीफंस धारवाड़कर डिस्कसेस ऑन अर्ली इंडियन राइटर्स हु रॉट इन इंग्लिश सो he talks about the writers or the persons who first came to India from England. तो इंग्लिश भाषा बोलने वाले कौन से ऐसे लोग थे जो सबसे पहले इंडिया में आए और उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा तो ये सब इस सेक्शन में डील किया गया है एंड द फोर्थ सेक्शन ऑफ दिस वर्क is
and title the first Indian writers in English. तो इस सेक्शन का जैसे कि टाइटल बता रहा है, पहले कौन से इंडियन राइटर्स थे जिन्होंने इंग्लिश में लिखा, तो उनके बारे में सेक्शन जो है वो हमें बताता है. So now we will read the text of this essay. The first section, locating Indian English literature in history. जैसे कि टाइटल बता रहा है, here we will see इंडियन इंग्लिश लिटरेचर जो है वो हिस्ट्री में कब शुरू हुआ, किसने लिखा, उसको लोकेट किया गया है. The first text to be composed in English by an author of Indian origin was the Travels of Dean Muhammad, a native of Patna in Bengal, through several parts of India while in the service of the Honorable East India Company, written by himself in a series of letters to his friends, which appeared in print in 2 volumes in Cook Island in 1794. So we can see in the first sentence there are lot of information. अब पहले ही सेंटेंस में यहाँ विनय धारवाड़कर ने हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन दी है. उन्होंने क्या कहा है कि पहला टेक्स्ट दैट वाज कंपोज्ड इन इंग्लिश, जो कि इंग्लिश भाषा में कंपोज किया गया किसी इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति के द्वारा, उस टेक्स्ट का नाम क्या था? द ट्रेवल्स ऑफ डीन मोहम्मद. और डीन मोहम्मद जो था, ही वॉज ए नेटिव ऑफ पटना इन बंगाल, बंगाल में पटना का रहने वाला था. थ्रू सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया while in the service of the Honorable the East India Company. ईस्ट इंडिया कंपनी में अपनी सेवाओं के दौरान उसने भारत के बहुत से हिस्सों में भ्रमण किया. रिटन बाय हिमसेल्फ, और उस दौरान उसने खुद ने लिखा इन ए सीरीज ऑफ लेटर्स टू ए फ्रेंड, अपने एक फ्रेंड को पत्रों की श्रृंखला में. यानी इन्होंने डीन मोहम्मद ने अपने एक फ्रेंड को काफी लेटर्स लिखे. तो इन द सीरीज ऑफ लेटर्स दैट इज रिटन बाय डीन मोहम्मद एंड विच अपियर्ड इन प्रिंट इन 2 वॉल्यूम्स, जो कि 2 वॉल्यूम में दो बुक की फॉर्म में 2 वॉल्यूम में अपियर हुआ, पब्लिश हुआ. और पब्लिश कहाँ हुआ? इन कोक आयरलैंड, आयरलैंड के कोक स्थान पे. एंड व्हेन इट वाज पब्लिश इन 1794. तो ये जो पहला सेंटेंस है इस वर्क का, वही हमें इंफॉर्मेशन देता है बहुत सारी, कि कौन व्यक्ति था इंडियन ओरिजिन का जिसने सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा, दैट वाज डीन मोहम्मद. कौन सा वर्क लिखा गया, तो दैट इज द ट्रेवल्स ऑफ डीन मोहम्मद. एंड उन्होंने किस फॉर्म में लिखा, तो ये लेटर्स की फॉर्म में लिखा हुआ वर्क है. और कहाँ पब्लिश हुआ और कितने वॉल्यूम में पब्लिश हुआ, तो आयरलैंड में पब्लिश हुआ. It was published in 2 volumes, and when it was published in 1794. Dean Mohammed had emigrated from India a decade earlier at the age of 25. जब ये 25 साल के थे तो ये भारत से बाहर चले गए थे. Had converted to establish Protestant church in Ireland shortly afterward. और वहां जाने के बाद, आयरलैंड जाने के बाद वहां इन्होंने अपना धर्म जो है वो चेंज कर लिया, प्रोटेस्टेंट चर्च जो है उसको इन्होंने ज्वाइन कर लिया. एंड ही हैड मैरिड ए यंग वुमेन फ्रॉम द एंग्लो आयरिश जेंट्री. और वहां एंग्लो आयरिश जेंट्री की जो एक औरत थी उससे इन्होंने शादी की. At the time when he wrote his book, he lived in Cork in comfortable financial circumstances, supporting his wife and children by working as a domestic supervisor on a large estate. और जिस समय वो ये किताब लिख रहे थे उस समय ये कोक में रह रहे थे, आयरलैंड में. इनकी जो सिचुएशन थी, फाइनेंशियल सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस अपने देखे तो दैट वाज कंफर्टेबल, यानी आर्थिक स्थिति अच्छी थी. ही वाज सपोर्टिंग हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन. एंड उनका जो ऑक्यूपेशन था वो क्या था? एक डोमेस्टिक सुपरवाइजर थे एक लार्ज ईस्टेट के. His marriage as well as his employment gave him access to the city's upper class society. तो डीन मोहम्मद जो है, इनकी शादी क्योंकि एक एंग्लो आयरिश लेडी से हुई थी, उसके साथ साथ इनका जो एम्प्लॉयमेंट था, एक डोमेस्टिक सुपरवाइजर थे एक लार्ज ई स्टेट के, तो उसकी वजह से इनका जो एक्सेस है यानी इनका जो एक्वेंटेंस है वो वहां के उस शहर के अपर क्लास सोसाइटी के लोगों से था. Then the most prosperous in Ireland after Dublin's, thriving on maritime trade,
with the newer colonies of the British Empire। यानी हायर क्लास के लोग, अपर सोसाइटी के लोग जो कि आयरलैंड में बहुत अच्छा व्यापार कर रहे थे उस समय, और ब्रिटिश एम्पायर की जो न्यू कॉलोनीज है उनके साथ उनका ट्रेड चल रहा था, तो ऐसे लोगों के साथ इनका परिचय था। In early 1793, when he advertised a proposal to publish his work by subscription and personally visited prominent families in Southern Ireland to raise money for the venture, his social status as an immigrant Indian was sufficiently secure। और 1793 में जब इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दी अपने बुक का प्रपोजल जो है उसको पब्लिश करने के लिए, इनको सब्सक्रिप्शन चाहिए था, तो पर्सनली ये अपनी वहां के कुछ आयरलैंड के, सदर्न आयरलैंड के कुछ परिवारों में पर्सनली भी इन्होंने विजिट किया ताकि इस प्रयास के लिए इनको पैसा मिल सके। सो हिज सोशल स्टेटस एज एन इमिग्रेंट इंडियन वाज सफिशिएंटली सिक्योर। तो उनका सामाजिक स्टेटस अगर वहां देखें उस समय एक इमिग्रेंट इंडियन के रूप में, तो वो एक सिक्योर स्टेटस था उनका। जैसे कि मिशेल एच फिशर उनके बारे में रिमार्क करते हैं, फॉर ए टोटल ऑफ 320 पीपल टू एंट्रस्ट him with the deposit long in advance of the book's delivery। ये फिशर ने अपनी बुक ट्रेवल्स में पेज नंबर 137 पे ये बात कही है कि जब डीन मोहम्मद जो है उन्होंने लोगों से कांटेक्ट किया फॉर द सपोर्ट ऑफ हिज बुक, उनकी बुक के पब्लिकेशन के लिए, तो टोटल 320 लोगों ने उन पर ट्रस्ट किया और एडवांस में ही उनकी बुक की डिलीवरी के लिए पैसा डिपॉजिट कर दिया। The appearance of the two-volume edition the following year evidently enhanced his personal prestige among the elite of Coke। और अगले आने वाले फॉलोइंग ईयर में, जैसे कि इन्होंने 1793 में अपना ये प्रपोजल प्रेजेंट किया था और इसके लिए इन्होंने कुछ जो मनी है उसको भी कलेक्ट किया लोगों से मिलके अपनी बुक के पब्लिकेशन के लिए। और बुक जो है 1794 में जैसे ही अपीयर हुई, तो वहां के जो इलीट लोग थे, जो प्रेस्टिजियस लोग थे, उनके बीच में इनका जो पर्सनल प्रेस्टीज है वो और भी ज्यादा बढ़ गया। एंड दो द वर्क अट्रैक्टेड लिटिल लास्टिंग अटेंशन फ्रॉम द ब्रिटिश पब्लिक। हालांकि पब्लिकेशन के समय वहां ब्रिटिश लोगों ने इस बुक की तरफ बहुत ज्यादा उनका अट्रैक्शन नहीं था, बट दिस बुक कॉन्ट्रीब्यूटेड एटलीस्ट टेंजेंशियली टू हिज डिस्टिंक्शन इन लेटर लाइफ इन इंग्लैंड। लेकिन बाद में क्योंकि ये इंग्लैंड में रहे थे, तो वहां इंग्लैंड का जो उनका बाद का जीवन था, वो जीवन जो है उसके लिए ये बुक जो है एक रूप से उनके लिए डिस्टिंक्शन लेके आई। वेयर ही रीसेटल्ड अराउंड 1807। तो 1807 में ये इंग्लैंड में जाके रीसेटल हुए, एंड दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन 1794, एंड देयर ही वर्कड एज एन एंटरप्रेन्योर until his death in 1851। और इंग्लैंड में इन्होंने एक एंटरप्रेन्योर का काम किया अपनी डेथ तक, और ही डाइड इन द ईयर 1851। So this paragraph tells us about the person of Indian origin who wrote the first text in English। यानी भारत के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहली किताब लिखी इंग्लिश भाषा में। तो वो कौन थे? डीन मोहम्मद थे। और कैसे उन्होंने इस बुक को पब्लिश किया, किस फॉर्म में लिखी गई थी? तो द बुक वाज रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स। Further, Vinay Dharwadkar writes about Dean Mohammed. Dean Mohammed's biography and literary career inevitably raise a number of historical, interpretive and theoretical questions। अगर डीन मोहम्मद की बायोग्राफी देखें या उनका साहित्यिक करियर देखें, तो ये निश्चित रूप से बहुत से प्रश्न उठाता है जो कि इतिहास से संबंधित है, इंटरप्रेटिव है और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। जैसे कि अब यहाँ इस पैराग्राफ में विनय धारवाड़कर ने कुछ क्वेश्चंस को रेज किया है अपने रिसर्च के लिए कि वो क्या क्या जानना चाहते हैं, क्या क्या प्रश्न उनके दिमाग में आए डीन मोहम्मद की बायोग्राफी और उनके लिटरेरी करियर को लेकर। द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ही अचीव द प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश? कि उन्होंने इंग्लिश भाषा में कुशलता कैसे हासिल की। एंड द ब्रॉड अकल्चरेशन टू ब्रिटिश एंड यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ that he possessed when he migrated to Ireland as an adult in the last quarter of the 18th century। 18th century के last quarter में ये
माइग्रेट हुए थे, वहां पर आयरलैंड गए थे, तो इन्होंने किस तरह के कल्चरल जो नॉलेज थी वहां की, ब्रिटिश और यूरोपियन वेज की जीने का जो तरीका था, उनका जो कल्चर था, वो इन्होंने कैसे अचीव किया, जिसकी वजह से ये वहां आयरलैंड में जो है कुशलता से वहां रह पाए। तो वहां माइग्रेट करने से पहले इन्होंने इस चीज को कैसे जाना, कैसे उन्होंने कल्चरल जो तरीके थे ब्रिटिश और यूरोपियन वेज थे जीवन जीने के, उनको इन्होंने कैसे पोजेस किया। हाउ डिड ही एक्वायर द सोफिस्टिकेटेड नॉलेज ऑफ 18th century English literature and print culture that seems to be encoded in his epistolary travel narrative and autobiography set in early British colonial India. उनका जो ट्रेवल नरेटिव है, द ट्रेवल्स ऑफ डीन मोहम्मद, ये एपिस्टलरी फॉर्म में लिखा हुआ है। एपिस्टलरी फॉर्म वो होती है जिसमें कि लेटर्स की फॉर्म में लिखा जाता है। तो जैसे इसमें शुरू में ही हमने पढ़ा कि इन्होंने अपने फ्रेंड को एक लेटर्स की सीरीज लिखी, उसी को बाद में बुक फॉर्म में इन्होंने कन्वर्ट किया था। तो ये जो ट्रेवल नरेटिव है ये एपिस्टलरी है। तो इस जगह ये क्वेश्चन उठाया गया है कि हाउ डिड ही एक्वायर, कि उन्होंने जो सोफिस्टिकेटेड नॉलेज थी 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर की और वहां के प्रिंट कल्चर की, वो नॉलेज उनको कैसे मिली, वो कैसे एक्वायर की, जो कि उनके इस एपिस्टल ट्रेवल नरेटिव में और उनकी ऑटोबायोग्राफी में देखने को मिलती है। What social, political, and economic conditions in Patna and the Bengal province before his time and between his birth in 1759 and his departure in 1784 could have prepared him for the transformations he underwent after immigration? तो ऐसी कौन सी सामाजिक, पॉलिटिकल और आर्थिक कंडीशन थी पटना और बंगाल रीजन की बिफोर हिज टाइम, उनके समय से पहले, और बिटवीन या फिर उनका जन्म जो हुआ और वहां से उनका जो डिपार्चर हुआ था 1784 में, एंड ही वाज बोर्न इन 1759। तो इस समय के दौरान, इस समय के बीच में कैसी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां थी पटना और बंगाल प्रोविंस की, दैट कुड हैव प्रिपेयर्ड हिम, जिसने उसको इतना प्रिपेयर कर दिया कि उसने जो ट्रांसफॉर्मेशंस देखे इमिग्रेशन के बाद, उसने जो ट्रांसफॉर्मेशन देखे, तो उनसे डील करने के लिए कौन सी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों ने उसे प्रिपेयर किया। क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हुए? फर्स्ट इज अबाउट ए change in language, a linguistic shift from Bengali, Hindustani and Persian to English। सबसे पहला चेंज इन्होंने क्या देखा कि यहाँ इनकी जो लैंग्वेज थी, ही वॉज मल्टीलिंगुअल, बंगाली आती थी, हिंदुस्तानी और पर्शियन भाषा यहाँ इंडिया में ये बोलते थे। इससे इनका ट्रांसफॉर्मेशन चेंज किस में हुआ? टू इंग्लिश। इंग्लिश में ए रिलीजियस शिफ्ट फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ इस्लाम एंड हिंदुइज्म टू ए प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी, ऑक्यूपेशनल और रिलीजियस, धार्मिक अगर अपने चेंज कहें, ट्रांसफॉर्मेशन कहें, तो वो कैसे हुआ? हियर ही वाज इस्लाम एंड हिंदू, यहाँ ये इस्लाम और हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे थे। इससे ये वहां आयरलैंड जाते ही क्या बन गए? एक क्रिश्चियन, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी को इन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद इनके ऑक्यूपेशन में भी, इनके काम में भी चेंज आया। शिफ्ट फ्रॉम सबाल्टर्न सोल्जर टू हाउस होल्ड मैनेजर, यानी यहाँ ये ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सोल्जर थे और आयरलैंड जाकर ये एक हाउस होल्ड मैनेजर बने, राइटर बने, रेस्टोरेटियर बने और इनोवेटिव फिजिकल थेरेपिस्ट। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने देखे वहां पर, तो उनके लिए कैसे प्रिपेयर हो सके। What role, if any, did his literate Indian multilingualism play in his thinking and writing in English? उन्होंने जो इंग्लिश भाषा में लिखा, उसमें क्या कोई रोल उनकी जो मल्टीलिंगुअलिज्म थी उसने प्ले किया, यानी भारत में उनको बहुत सी भाषाएं आती थी, तो उसका क्या रोल रहा उनकी सोचने की क्षमता में और उनके इंग्लिश में लिखने में, or in his representation of India to an Anglo-Irish audience at the early date। और चूंकि इनकी पहली ऑडियंस जो थी वो एंग्लो आयरिश थी, यानी इन्होंने आयरलैंड में पब्लिश किया अपनी बुक को, तो वहां इन्होंने इंडिया को जो है वो कैसे रिप्रेजेंट किया, उसके रिप्रेजेंटेशन में इनकी जो इंडियन मल्टीलिंगुअलिज्म थी उसने क्या रोल प्ले किया। What were his purposes in composing and publishing his travels with such close attention to detail? उनका क्या उद्देश्य रहा, ये जो उन्होंने अपने ट्रेवल्स को पब्लिश किया है
बहुत ही पूरे ध्यान से और पूरे डिटेल में इसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया है, तो उसके पीछे उनका क्या पर्पस रहा है। वाई डिड ही चूज टू कास्ट हिज मटीरियल इन द एपिस्टलरी ट्रेवलॉग फॉर्म। उन्होंने अपना जो मटेरियल है, अपना जो फॉर्म है राइटिंग का, वो एपिस्टलरी ट्रेवलॉग फॉर्म क्यों रखा। एंड व्हाट लार्जर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल डायनामिक्स डिड ही इनिशिएट। और किस तरह के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिवर्तन उन्होंने प्रारंभ किए, इनिशिएट किए। तो ये कुछ प्रश्न जो है वो रेज होते हैं। अनदर क्वेश्चन हियर इज, was he merely an anomaly, or was he representative of an entire class of phenomena that had just begun to take shape in his lifetime and was to accumulate a great deal of cultural momentum over the next 2 centuries। तो क्या वो अपने आप को ही वहां रिप्रेजेंट कर रहे थे और ही वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर क्लास, या फिर एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे थे जिसने कि अभी अभी जो है वो एक कल्चरल मोमेंटम की शुरुआत की थी, उसको एक्यूमुलेट करना शुरू किया था, जो कि आगे अगली 2 सदियों तक, 200 सालों तक चलना था। In any case, what made his extraordinary life story between 1759 and 1851 possible in the first place? तो और क्या उनकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनका जो असाधारण लाइफ स्टोरी है 1759 से लेके 1851 तक, तो ये कैसे संभव हो सका। ये कुछ प्रश्न जो है वो इन्होंने इस रिसर्च के माध्यम से इनका आंसर जानने की कोशिश की है। सो दिस इज अबाउट द first 2 paragraph of the first section of this work. Next we will do in the next video. So thank you so much for watching.